Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss our exercise 2.51 to 2.61. Okay, let's start the first question of today's lecture, exercise 2.51. The question is, the work function for the cesium atom is 1.9 electron volt. Calculate. First, we have to calculate the threshold wavelength, right? Second, the threshold frequency of the radiation. And third one, if the cesium element is irradiated with a wavelength 500 nanometer, calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected photoelectron. Right, हमें क्या बोला गया है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो ये वर्क फंक्शन दिया गया है, मतलब W नॉट दिया गया है. ओके, वी कैन राइट दैट इट्स ऑल्सो E नॉट, राइट, विच इज 1.9 electron volt. Now convert that electron volt into joule. So for that you have to multiply by 9.1 into 1.6 into 10 to the power minus 19. तो electron volt convert हो जाएगा joule में, right? The multiplication of that two term is 3.04 into 10 to the power minus 19 joule, right? Now in the A we have to find out the threshold wavelength, which is lambda naught, right? After that we have to calculate the threshold frequency, so nu naught, right? In C we have to calculate if the radiation having the wavelength 500 nanometer, then for that wavelength we have to calculate the kinetic energy and also we have to find out the velocity of that electron or radiation emitted. Okay, photoelectron. Now हमारे पास E नॉट गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट लैम्बडा नॉट. तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा A, राइट? A is equal to E naught equal to Hc by lambda naught. Here we have to find out the lambda naught, so we can subtract that lambda naught and rearrange the formula. Now replace the value of H, which is the Planck constant, having 6.626 into 10 to the power minus 34 joule into second value, right? And 3 is the velocity of light, having the value 3 into 10 to the power 8, right? Now E naught is we already find out in joule, which is 3.04 into 10 to the power minus 19, right? If you multiply that two term and divide it by this, you will get 6.54, right? Here now 10 to the power minus 34 plus 8, that minus 19 ऊपर जाएगा, then it will be converted into plus, so you will get minus 34 plus 8 plus 9, 19. So you can write that 6.54 into 10 to the power minus 7 मीटर, right? और you can write that अगर हम दो डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट होंगे, देन यू विल गेट 654 into 10 to the power minus 9 मीटर, विच इज इक्वल टू 654 नैनोमीटर. तो ये हमें मिल गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट? In the B we have to find out the threshold frequency, right? Now the frequency having a formula nu naught is equal to C by lambda naught, right? Here we already calculate the lambda naught and we know the value of C, so replace that two terms, 3 into 10 to the power 8. Now here you have to replace that value, or you can write that value, right? Now anyone can, any one value you can replace on behalf of that lambda naught, 6.54 into 10 to the power minus 7 meter. So you will get 0.549 into 10 to the power 15. So it will be equal to 4.59 into 10 to the power 14 second inverse, or you can write its unit will be hertz. Okay, now तो दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली. लैम्बडा नॉट इज कैलकुलेट एंड न्यू नॉट इज कैलकुलेटेड, राइट? वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी व्हेन लैम्बडा इज गिवन 500 नैनोमीटर, राइट? काइनेटिक एनर्जी और जो वेलोसिटी है फाइंड आउट करनी है कब, जब हम उसे 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं. ओके, सो वी कैन राइट दैट द काइनेटिक एनर्जी, राइट,
वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हमारा E माइनस ई नॉट, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस kinetic energy. Okay, so we can subject that and rearrange the formula. Now यहाँ पे हमें क्या चाहिए? तो E भी चाहिए, E नॉट भी चाहिए. तो पहले हम E फाइंड आउट कर लेते हैं. E नॉट तो ऑलरेडी गिवन है. ओके, तो E क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा, राइट? HC बाई लैम्बडा. नाउ H 6.626 है इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. C है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8. And here the lambda is given 500 nanometers, so we can write that 500 into 10 to the power minus 9, right? अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इससे डिवाइड करोगे then you will get 0.0398 into 10 to the power minus 17, right? और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे then you will get 3.98 into 10 to the power minus 19 जूल. तो ये हो गया हमारा E, right? Now we want that kinetic energy, right? For that replace the value of E, and we also having all E naught already हमने find out कर लिया है. सही है. यहाँ पे E naught कितना आया था हमारा 3.04. बस वही वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है यहाँ पे. So you will get the kinetic energy is equal to 3.98 into 10 to the power minus 19 minus 3.04 into 10 to the power minus 19. यहाँ पे दोनों में 10 to the power minus 19 सेम है, so you will get common it, right? So you will get 3.98 minus 3.04 into 10 to the power minus 19. Now the subtraction of this gives you 0.94 into 10 to the power minus 19. So you can write that the kinetic energy is equal to 9.4 into 10 to the power minus 20 joule, right? Now we calculate the kinetic energy. We have to also calculate the velocity for this kinetic energy, right? Now we having a formula kinetic energy is equal to half mv square. From that we can subtract the v and rearrange the formula. If we rearrange the formula, we will get v square is equal to 2 kinetic energy into m, and for the v is equal to 2 kinetic energy into m, it's the whole term is in the under root of, right? Chalo. Now replace the value 2 into kinetic energy value we already calculated, which is 9.4 into 10 to the power minus 20, and the mass of that photoelectron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram, right? Now if you multiply and divide that 3 term, you will get the answer 2.06 into 10 to the power. यहाँ पे क्या हो जाएगा? minus 20. ये माइनस ऊपर जाएगा, it will be a plus minus 20 plus 31, it will be a 11, राइट? अब यहाँ पे हमें इसका अंडर रूट लेना है. फॉर द टेकिंग अंडर रूट, यहाँ जो 10 का पावर है वो ऑलवेज इवन नंबर होना चाहिए. सही है. और नंबर नहीं होता है क्योंकि बाई 2 करने पे फ्रैक्शन मिलेगा, जो पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए हमें इसे क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा इवन नंबर में. हम उससे 12 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, अगर हम यहाँ पे 1 डिजिट राइट हैंड साइड जाएंगे तो -1 होगा, तो 10 11 है, 10 टू द पावर 11 है, -1 होने पे वो हो जाएगा कितना? 10 टू द पावर 20.6 यहाँ पे हो जाएगा. 1 डिजिट हमने राइट हैंड साइड गए, साथ में यहाँ पे 1 डिजिट लेस होगा, मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा. ओके, नाउ टेक द अंडर रूट ऑफ दैट 20.6 विच इज इक्वल टू 4.54, एंड यहाँ पे जो पावर है वो हाफ हो जाएगा क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है. 10/2 होता है 5, सो यू विल गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू 4.54 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये हो गया आपका 2.51 कंप्लीट. यहाँ पे लैम्बडा नॉट, न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.52. Following results were observed when a sodium metal is irradiated with
different wavelengths, calculate A threshold wavelength and B Planck's constant. Right here we have to find out the lambda naught and also we have to find out the Planck constant H. Right, here some data are given and this is the wavelength in the nanometer and it's a velocity. When we applied that much radiation, that wavelength having radiation, the velocity of that electron or photoelectron is in this term. Right here velocity into 10 to the power minus 6 meter per second given. If we take only velocity मीटर पर सेकेंड, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ये 10 टू द पावर माइनस 6 उसके मल्टीप्लिकेशन में है. ओके, अगर हमें ओनली वेलोसिटी चाहिए तो ए टर्म इसके डिवीजन में चली जाएगी. ओके, अगर डिवीजन में जाएगी तो वो हो जाएगी प्लस. सो वी कैन राइट दैट द वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.55 इंटू 10 टू द पावर 6. यहाँ पे हो जाएगी 4.35 इंटू 10 टू द पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगी 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6. कहाँ से आई, पता चला कि यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी दी गई है, सपोज के पहले की बात करें तो जो वेलोसिटी है v इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल टू है 2.55. ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ वेलोसिटी चाहिए तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2.55. यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चली जाएगी और 10 टू द पावर माइनस 6 डिवीजन में है, अगर उसे ऊपर ले जाएंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू +6. ओके, तो इस तरह से हमने ये सारी टर्म वेलोसिटी की लिख ली है. नाउ हमें यहाँ पे लैम्बडा नॉट और प्लैंक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो एक्चुअली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. राइट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम सब्जेक्ट करते हैं देन वी विल गेट E इज इक्वल E माइनस ई नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. सो वी विल यहाँ पे अगर E की वैल्यू रिप्लेस करें इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ तो वो हो जाएगा hc बाई लैम्बडा माइनस hc बाई लैम्बडा नॉट इक्वल टू 1/2 mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv². अब यहाँ से यू कैन सी दैट hc हमारा कॉमन निकल जाएगा. राइट, सो यू विल गेट 1 by lambda minus 1 by lambda naught, right, equal to 1/2 mv². राइट, अगर यहाँ पे हम ये जो हमारा टेबल दिया गया है उसके लैम्बडा और वेलोसिटी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, सो ये सब के लिए, देन यू विल गेट hc यहाँ पे 1 बाई लैम्बडा कितना है हमारा, पहले के लिए है 500 नैनोमीटर माइनस 1 बाई लैम्बडा नॉट. सो यू विल गेट 1/2 m और उसके लिए जो वेलोसिटी है वो है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. ओके, अगर बाकी की दो वैल्यू भी हम रिप्लेस कर देते हैं वी विल गेट hc. सही है, और साथ में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 बाई 450 माइनस 1 बाई लैम्बडा नॉट, राइट, इक्वल टू 1/2 यहाँ पे हो जाएगा m 435 इंटू 10 टू द पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर. ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. एंड ऐसे ही हमें तीसरा भी इक्वेशन मिल जाएगा hc 1 बाई 400 माइनस 1 बाई लैम्बडा नॉट इक्वल टू 1/2 mv है 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर. इट इज अवर इक्वेशन नंबर 3. ओके, चलो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कोई भी दो इक्वेशन लेके उसे डिवाइड करना है. ओके, इफ वी टेक 3 and 1, ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 by equation 1. ओके, देन वी गेट यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमारा जो 3 है वो लिख लेते हैं hc 1 बाई 400 माइनस 1 बाई लैम्बडा नॉट इक्वल टू 1/2 m 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ऐसे ही 1 हमारा था hc बाई 1 बाई 500 माइनस 1 बाई हमारा यहाँ पे मिल जाएगा हमें लैम्बडा नॉट इक्वल टू 1/2 m
और यहाँ पे है हमारा 2.55 इंटू 10⁻6 2 स्क्वायर. ओके, चलो you can see that here that HC will be cancelled out, that half m will be cancelled out. Also that is 10⁻6, 10⁻6 so whole square is also going to divide. So you will get यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो हम अगर यहाँ पे LCM भी ले लेते हैं, यू विल गेट लैम्बडा नॉट माइनस 400 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 400 लैम्बडा नॉट. सही है. मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे डिवीजन में भी हम LCM ले लेते हैं, देन वी विल गेट लैम्बडा नॉट माइनस 500 इंटू ये जो डिवीजन के डिवीजन में है वो ऊपर चला जाएगा. सो यू विल गेट 500 लैम्बडा नॉट. राइट, here you can say that again that lambda not going to be cancel out, and that also two zeros are going to cancel out, and you will get 5.35 whole square divided by 2.55 whole square. Okay, now इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, then you will get 5 lambda naught minus 2000 divided by इस 4 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, then you will get 4 lambda naught minus 2000 is equal to 5.35 whole square divided by 2.55 whole square. Okay, now here ये जो दो टर्म है उसके स्क्वायर का अगर आप डिवीजन करोगे देन यू विल गेट 4.40177. राइट, यहाँ पे ए वाली टर्म को हम इस तरफ ले जाते हैं तो उसका मल्टीप्लीकेशन चली जाएगी. सो यू विल गेट 5 लैम्बडा नॉट माइनस 2000 इक्वल टू ये वाली जो टर्म इसके सिंप्लीफिकेशन से आई वो, और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 4 लैम्बडा नॉट माइनस 2000. ओके, चलो इस ब्रैकेट को ओवर कर देते हैं, देन यू विल गेट 5 लैम्बडा नॉट माइनस 2000 इक्वल टू यहाँ पे 4 इंटू 4.40177 उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 17.607 लैम्बडा नॉट, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 8803.54. ओके, ना कांस्टेंट टर्म को साथ में कर देते हैं, लैम्बडा नॉट वाली टर्म को साथ में कर देते हैं, देन यू विल गेट 17.607 लैम्बडा नॉट माइनस 5 लैम्बडा नॉट इक्वल टू 8803.54 माइनस 2000. सो यू विल गेट यहाँ पे रह जाएगा 12.607 लैम्बडा नॉट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6803.54. राइट, अब लैम्बडा नॉट चाहिए तो ए वाली टर्म को डिवीजन में ले जाओ. सो यू विल गेट लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 6803.54 डिवाइडेड बाय 12.607. राइट, सो यू विल गेट लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 539.66. सही है. अब यहाँ पे क्या है, तो ये जो है वो नियर इक्वल टू हो जाएगा 540, हम ये लिख सकते हैं. और ये जो लैम्बडा है दिए गए सारे नैनोमीटर में है, तो लैम्बडा नॉट भी किस में हो जाएगा, नैनोमीटर में हो जाएगा. ओके, चलो अब ये लैम्बडा नॉट की वैल्यू किसी भी एक में आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो. ओके, तो रिप्लेस करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम उसे रिप्लेस करते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 3 में. ओके, सब्स्टिट्यूटिंग this value in equation 3. ओके, तो हमारे ये पास इक्वेशन 3 है HC 1/400 इंटू 1 माइनस लैम्बडा नॉट था. लैम्बडा नॉट की जगह हमें लिख देना है 540 नैनोमीटर. अगर ये दोनों टर्म नैनोमीटर में है तो उस नैनोमीटर की जगह हम 10⁻⁻9 कॉमन निकाल लेते हैं. ओके, तो हो जाएगा इक्वल टू 1/2 m, और v की वैल्यू है 5.35 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर. ओके, यहाँ से हमें c निकालना है तो c को सब्जेक्ट कर लेते हैं. सो यू विल गेट h निकालना है तो h को सब्जेक्ट कर लेते हैं. ये 1/2 इंटू m की वैल्यू हो जाएगी 9.1 इंटू 10⁻31. यहाँ पे ये जो है 5.35 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर. ओके, मल्टीप्लाई में
अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 540 माइनस 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 140, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है। अगर ये डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी पूरी टर्म, तो यू विल गेट 400 इंटू 540, और यहाँ पे साथ में और ये वाली टर्म भी ऊपर चली जाएगी 10 टू द पावर माइनस 9, एंड होल डिवाइडेड बाई दैट सी, राइट, जो कि है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये जो एलसीएम लोगे तब यू विल गेट यहाँ पे 140, वो यहाँ पे डिवाइड कर दो। ओके, इफ यू सिंप्लीफाई दैट होल टर्म यू विल गेट एक्स इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, राइट। यही तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, यही वैल्यू आपको चाहिए थी। सही है, तो आपका लैम्बडा नॉट भी फाइंड आउट हो गया और एच भी फाइंड आउट हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.53. The ejection of the photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect experiment, right, can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt. When the radiation 256.7 nanometer is calculated, the work function for silver metal. सही है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, तो हमें ये दिया गया है कि जब हम इतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ओके, तब जो रेडिएशन है वो स्टॉप हो जाती है। तो अगर इतना अप्लाई करने से वो स्टॉप हो जाती है, सो वी कैन से दैट कि अगर उसकी एनर्जी इतना देने से स्टॉप हो रही है, ओके, सिंस the photoelectron can be stopped by applying a voltage of 0.35 electron volt, right. Therefore, kinetic energy of photoelectron is equal to 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी की ही होती है। अगर उतनी हमने अप्लाई कर दी है, वो यहाँ से इजेक्ट होना बंद हो गए, इट मीन्स कि उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। चलो, यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो convert that electron volt into a joule, so you have to multiply by 1.6 into 10 to the power minus 19, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 0.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी मिल गई। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, तो उसके लिए वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है, और रेडिएशन हमें दी गई है, वेवलेंथ दी गई है 256.7 नैनोमीटर। अगर वेवलेंथ दी गई है देन वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, राइट। एच है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लैम्बडा होता है हमारा गिवन है 256.7 नैनोमीटर है, तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9। ओके, नाउ अगर इन तीनों टर्म का आप सिंप्लीफिकेशन करोगे देन यू विल गेट द आंसर 7.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। मीन्स कि यहाँ पे हमें एनर्जी मिल गई इतनी। We have to calculate the threshold energy, or we can say that work function for this question, right. The work function होता है E नॉट, W नॉट इज इक्वल टू E नॉट जितना होता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास है E इज इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हमें E नॉट फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल टू होता है W नॉट, तो हो जाएगा यहाँ पे E माइनस काइनेटिक एनर्जी। चलो, E हमने कैलकुलेट कर लिया है 7.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है हमारे पास 0.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, तो यहाँ पे दोनों माइनस 19 में है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू विल गेट 7.74 माइनस 0.56 multiply by 10 to the power minus 19. So our work function will be
7.18 into 10 to the power minus 19 joule. Okay. Now the next question, exercise 2.54. If the photon of wavelength 150 picometers strikes an atom and one of its inner bound electron is ejected out with a velocity of 1.5 into 10 to the power 7 meter per second. Calculate the energy with which it is bounded to the nucleus. ओके हमें क्या करना है यहाँ पे, तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है. उसके लिए हमें पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमें जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं. लैम्बडा इज इक्वल टू 150 पिकोमीटर गिवन है, सो वी कैन राइट दैट 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर. ओके राइट. और साथ में हमें गिवन है यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो गिवन है. वेलोसिटी है हमारी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड. ओके लैम्बडा गिवन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द एनर्जी. ओके एनर्जी ऑफ दैट फोटोन, राइट, एनर्जी ऑफ फोटोन. तो वो हो जाएगी E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा. H है हमारा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे लैम्बडा है 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. राइट. If you simplify that whole term, you will get 1.33 into 10 to the power minus 15 joule. Right. Now here velocity is given, so we can find out the kinetic energy of that ejected electron. Right. So kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Right. 1/2 m है हमारा 9.1 into 10 to the power minus 31. उसका वेट है इलेक्ट्रॉन का, और साथ में ये हो जाएगा वेलोसिटी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 होल स्क्वायर. ओके चलो अब क्या होगा, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.025 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल. ओके चलो अब क्या करना है, तो यहाँ पे आप 16 आया तो इसे भी 16 में कन्वर्ट कर लेते हैं. देन इट विल बी 13.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल. ओके चलो क्योंकि दोनों टर्म सेम होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसे भी 15 में कन्वर्ट कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ओके नाउ हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है. सही है. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ नेम डिफरेंट है. एक्चुअली हमें ई नॉट ही फाइंड आउट करना है. तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट फोटोन. सही है. इंसिडेंट वाली कितनी आई हमारी 13.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16. यहाँ पे माइनस 1.025 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 है. तो यू कैन डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट दैट टर्म. Right, so you will get 12.3 into 10 to the power minus 16. Right, और उसे लिख सकते हैं 1.23 into 10 to the power minus 15 जूल. ओके तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी इतनी 1.23 into 10 to the power minus 15 जूल. ओके The next question, exercise 2.55. Emission transition in the Paschen series and at the orbit n is equal to 3 and the start from orbit n and can be represented as the velocity is equal to 3.29 into 10 to the power 5 hertz into 10 to the 1 by 3 square minus 1 by n square. राइट. ये जो हमारी वैल्यू दी गई है सही है, किसकी है, ये न्यू की है एक्चुअली. ओके इट्स न्यू. तो वो कितनी है, इतनी दी गई है. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट
1285 नैनोमीटर. फाइंड द रीजन ऑफ दिस स्पेक्ट्रम. ओके, हमें रीजन फाइंड आउट करना है. ओके, जो वैल्यू दी गई है वो पहले लिख लेते हैं. हमें दिया गया है न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15, साथ में 1/3² बाई 1/n². चलो, अब न्यू की वैल्यू क्या होती है तो हमें पता है न्यू इज इक्वल टू होता है c बाई लैम्बडा. सो वी कैन राइट दैट c बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 1/3² माइनस 1/n². राइट, नाउ हियर वी नो द वैल्यू ऑफ c विच इज 3 इंटू 10⁸ and the value of lambda is given 1285 nanometer, so it will be a 10⁻⁻9 equal to 3.29 into 10⁻15 1/3² माइनस 1/n². राइट, नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है तो हमें n फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसे रहने देते, ये वाली टर्म को डिवीजन में ले जाते हैं. ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/3² माइनस 1/n² इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1285 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 3.29 इंटू 10⁻15. ओके, अब हमें तो यहाँ पे सिर्फ 1/n² चाहिए. पहले इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है वो लिख लेते हैं हम. यहाँ पे 1/3² हो जाएगा 1/9. ओके, और ये वाली जो टर्म है उसका अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसे से ये पूरी टर्म को, देन यू विल गेट यहाँ पे 1/n² इक्वल टू 0.071. ये जो 1/9 है उसका सिंप्लीफिकेशन आएगा 0.111 माइनस 1/n² इज इक्वल टू 0.071. राइट, सो यू कैन राइट दैट 1/n² इज इक्वल टू 0.111 माइनस 0.071 विच इज इक्वल टू 0.04. सही है, और इसके इक्वल टू लिख सकते हैं 1/25. सो वी कैन राइट दैट n² इज इक्वल टू 25. अगर n² 25 है तो n हो जाएगा हमारा 5. ओके, तो जो रीजन है हमारा, सही है, कौन सी वेवलेंथ के लिए हमारा रीजन हमें देखना है, तो 1285 के लिए. ओके, तो 1285 नैनोमीटर के लिए ये जो रीजन होता है वो IR रीजन होता है, और उसका ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 5 में से n इज इक्वल टू 3 में हो रहा है. ओके, ये हम सिर्फ वेवलेंथ देख के ही डायरेक्ट रीजन बता सकते हैं कि रीजन कौन सा होगा IR, और उसका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो 5 में से हमारा n इज इक्वल टू 5 आया, मतलब n इज इक्वल टू 5 में से n इज इक्वल टू 3 में उसका ट्रांजिशन हो रहा है. ओके, होप यू क्लियर. Now the next question is exercise 2.56. Calculate the wavelength for the emission transition if its start from the orbit having a radius of 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series to which this transition belongs and the region of the spectrum. राइट, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो हमें ये बोला गया है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है तो उन दोनों की जो रेडियस दी गई है, पहले की रेडियस है 1.3225 नैनोमीटर, दूसरे की रेडियस है 211.6 पिकोमीटर. तो ये पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को पिकोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, now here we can write that the R1 is 1.3225 nanometer. अगर हमें 1.3225 इंटू 10⁻⁻9 मीटर लिख सकते हैं. अब हमें यहाँ पे पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, -12. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा. देन वी विल गेट 1322.5 इंटू 10⁻⁻12. सही है, A1 A2 और 3 डिजिट शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में तो -3 हो जाएगा. सो यू विल गेट इन द पिकोमीटर. ओके, तो 1 हो जाएगा 1322.5 पिकोमीटर. जो R2 है वो तो पिकोमीटर में ही गिवन है 211.6 पिकोमीटर. राइट, नाउ हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है R की वो लिख लेते हैं पहले. तो R इज इक्वल टू हमारे पास है 52.9 n² बाई Z. सही है, अब ये जो एमिशन पूरा हो रहा है
उसके लिए अगर हम बात करें ओके, तो जो भी है हमारा, तो यहाँ पे ये पहले के लिए बात करें तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 52.9 N1 स्क्वायर, Z तो वही रहेगा क्योंकि एटम सेम है, सही है। R2 के लिए हो जाएगा 52.9 N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z, सही। इसके अकॉर्डिंग हमने R1 R2 लिख ली। R1 R2 किसके अकॉर्डिंग होगी, तो n की वैल्यू चेंज होगी और R1 R2 की वैल्यू चेंज होगी। बाकी ये एटॉमिक नंबर क्या रहने वाला है, तो सेम रहने वाला है फॉर द सेम एटम, राइट। अब हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे उन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। सपोज ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, सही है। नाउ यहाँ पे हम कर लेते हैं एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा R2 बाई R1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 52.9 N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z इंटू यहाँ पे हो जाएगा 52.9 N1 स्क्वायर एंड उसके डिवाइडेड में Z जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे यू कैन से दैट Z विल बी कैंसल आउट एंड दैट 52.9 52.9 will be also cancelled out. Now you will get n square is equal to n2 square is equal to r2 into n1 square divided by r1। चलो r2 की वैल्यू कितनी है, 211.6 पिकोमीटर में है, तो उसकी वैल्यू 10⁻12 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों पिकोमीटर में है, तो यूनिट तो कैंसल आउट हो जाएगा। जो n1 है हमारा, ओके, वो क्या आएगा, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे कि n1 भी नहीं पता है तो यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें आंसर मिल जाएगा। ये है हमारा R2 है 211.6 और जो हमारा R1 है वो है 1322.5, ओके। नाउ अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, ये है हमारा n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर, ओके, देन यू विल गेट 0.16। वो किसके इक्वल टू हो गया, n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है, इक्वल टू 0.16 आया, ओके। यहाँ पे फिर से मैं वही लिख लेती हूँ, n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16। अब अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे देन यू विल गेट दैट, तो उसका यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे देन वी विल गेट n2 बाई n1 इज इक्वल टू 0.4। इस 0.4 को लिख सकते हैं हम 4/10, सही है। यहाँ पे 2 2 2 हो जाएगा और 5 2 2, तो ये 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा। देन यू विल गेट n2 इज इक्वल टू 2, यहाँ n1 हो जाएगा हमारा 5, ओके। सो n2 की वैल्यू 2 आ गई, n1 की वैल्यू 5 आ गई, सही है। तो हमारा ट्रांजिशन 5 में से 2 में हो रहा है, ओके। नाउ अगर 5 में से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, 2 में ट्रांजिशन होने का मतलब ये है हमारा कि इट बिलोंग्स टू द पार्मल सीरीज, सही है। हियर n2 इज इक्वल टू 2 एंड n1 इज इक्वल टू 5, therefore we can say that therefore the transition is from fifth orbit to second orbit, right, and it belongs to बार्मल सीरीज, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 में जाने से क्या हो जाएगी, वो हमारी बार्मल सीरीज हो जाएगी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लैम्बडा आल्सो, राइट। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास है फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7, राइट, 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 स्क्वायर, सही है। वो हमारा फॉर्मूला है ना n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर वाला, वही इंटू मीटर इनवर्स, ओके। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे वैल्यू, देन 1.097 इंटू 10⁻7, ये हो गया 1/4 माइनस 1/25 मीटर इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर एलसीएम लोगे देन 1.097 इंटू 10⁻7,
राइट। यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये हो गया मीटर इनवर्स, तो हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 100। ये हो गई हमारी न्यू बार की वैल्यू, सही है। अब न्यू बार इक्वल टू तो होता है हमारा 1/λ, सही है। तो ये सारी जो वैल्यू आई है वो किसके लिए आई है, हम ये कह सकते हैं 1/λ के लिए, सही है। तो अब लैम्बडा क्या हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म को हमें क्या करना है, उल्टा देना है। देन यू विल गेट दैट 100 डिवाइडेड बाय 1.097 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 21। सो यू विल गेट द लैम्बडा इज इक्वल टू 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, राइट। सो यू कैन से दैट 434 नैनोमीटर, राइट। वेवलेंथ क्या आएगी ये, और ये जो वेवलेंथ है वो किसके लिए है, तो विजिबल के लिए है। ये इट्स फॉर्म अ विजिबल रीजन, ओके। ये किसके लिए हो जाएगी, तो विजिबल रीजन के लिए हो जाएगी हमारी, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.57. A dual behavior of matter proposed by de Broglie led to a discovery of the electron microscope, often used for a highly magnified images of the biological molecules and other type of the material. If the velocity of the electron in the microscope is 1.6 into 10⁻6 meter per second, calculate the Broglie wavelength associated with this electron, राइट। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आप देखोगे कि क्या फाइंड आउट करना है, क्या दिया गया है। तो इट्स अ वेरी सिंपल, यहाँ पे वन टर्म दी गई है, वो क्या है, वेलोसिटी दी गई है 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लैम्बडा, राइट। नाउ द इफ यू यूज द Broglie इक्वेशन, देन यू विल गेट लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। चलो h तो क्या है हमारा, प्लैंक कांस्टेंट, हैविंग द वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻30। जो m है वो इलेक्ट्रॉन का वेट है 9.1 इंटू 10⁻⁻13, और v दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बस आपको इन सारी टर्म को सिंप्लीफाई करना है। सो यू विल गेट 4.55 इंटू 10⁻10 meter. So you can write that 4.55 एंगस्ट्रॉम, राइट, 10⁻⁻10। और आपको इसे पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप पिकोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। 2 डिजिट चले जाओगे, देन यू विल गेट 455 पिकोमीटर, क्योंकि 10⁻12 हो जाएगा। और आपको नैनोमीटर में आंसर चाहिए, देन यू हैव टू शिफ्ट 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड, सो यू विल गेट दैट 0.455 नैनोमीटर, ओके। तो जिसमें भी आपको आंसर चाहिए आप रख सकते हो, मीटर में भी रखोगे चलेगा। सो योर लैम्बडा विल बी 4.55 इंटू 10⁻12 मीटर 10 मीटर, ओके। बहुत ही सिंपल है। इसकी जितनी लेंथ थी उसका तो सॉल्यूशन भी नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सिर्फ क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है वो देख लो तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। Now the next question is exercise 2.58. Similar to electron diffraction, neutron diffraction microscope is also used for the determination of the structure of the molecules. If the wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristic velocity associated with the neutron. राइट, न्यूट्रॉन के साथ जो वेलोसिटी एसोसिएट है वो हमें फाइंड आउट करनी है, एंड द लैम्बडा इज गिवन, राइट ना। यहाँ पे लैम्बडा दिया गया है हमें 800 पिकोमीटर, सो वी कैन राइट दैट इट विल बी 800 इंटू 10⁻12 मीटर, और यू कैन राइट दैट 8 इंटू 10⁻10 मीटर, ओके। नाउ हियर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, तो अब तक सारे जो हमारे न्यूमेरिकल थे उसमें इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी, यहाँ पे किसकी बात है, न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पे मास ऑफ हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भूल से इलेक्ट्रॉन का मास से रिप्लेस मत कर देना, ओके। नाउ द फॉर्मूला इज लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, right? We have to find out the velocity, so subtract that velocity and rearrange the formula. You will get v is equal to h/m lambda. चलो h है 6.626 इंटू 10⁻34। m की वैल्यू दी गई है हमें पता है 1.675 इंटू 10⁻27,
और जो लैम्बडा है वो दिया गया है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, राइट। चलो आप इनका अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे देन यू विल गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू 4.95 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ इट्स सिंपल. Next question is, if the velocity of the electron inboards the first orbit 2.19 into 10 to the power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength associated with it. ओके हमें क्या करना है, de Broglie wavelength फाइंड आउट करनी है. वेलोसिटी गिवन है 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम. बस यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई एम वी. h की वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. m होता है हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और v दिया गया है 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6, राइट. बस सारी वैल्यू रिप्लेस करो एंड सिंप्लीफाई करो, देन यू विल गेट द लैम्बडा इज इक्वल टू 3.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 meter, right. Similarly you can write that 3.32 angstrom, or you can write that 332 into 10 to the power minus 12 meter is which is equal to 332 picometer. और नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, then you will get 0.332 into 10 to the power minus 9 which is equal to 0.332 नैनोमीटर. तो जिस किसी भी यूनिट में आप आंसर रखना चाहते हो आप रख सकते हो, वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो. ओके तो आपकी वेवलेंथ आ गई 3.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.60. द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट is 4.37 into 10 to the power 5 meter per second. If the hockey ball of mass 0.1 kilogram is moving with this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity. Right, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे पास जो बॉल है उसका मास है 0.1 ग्राम. ओके, मास दिया गया है 0.1 किलोग्राम एंड जो वेलोसिटी है वो दी गई है हमारे पास 4.37 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द यहाँ पे यस calculate the wavelength, right. We have to calculate the wavelength for that question. So it's again we have to use de Broglie equation. Lambda is equal to h by mv. h है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. m है हमें दिया गया 0.1 किलोग्राम और v है हमारे पास 4.37 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट. If you simplify that, then you will get lambda is equal to 1.52 into 10 to the power minus 38 मीटर. ओके, तो ये हो गई हमारा जो बॉल थे उसके थ्रू जो डिटेक्ट होती है वेवलेंथ वो हो गई यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 38 है. मीन्स यू कैन से दैट ये वेवलेंथ काफी कम है, काफी स्मॉल है. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर which is 2.61. If the position of the electron is measured within an accuracy of plus or minus 0.002 nanometer, calculate the uncertainty in the momentum of the electron. Suppose the momentum of the electron is h by 4 pi into 10 to 0.05 nanometer. Is there any प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू, राइट. हमें क्या बोला गया है, तो यहाँ पे जो पोजीशन में एक्यूरेसी है, पोजीशन में मतलब कि डेल्टा एक्स दिया गया है 0.002 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 0.002 नैनोमीटर है, सॉरी, तो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. सो यू कैन राइट दैट यहाँ पे अगर आप उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे देन यू विल गेट 2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 3 डिजिट इस तरफ जा रहा है तो माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. सो यू विल गेट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर. ओके, नाउ हमें मोमेंटम फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h बाई 4 पाई, राइट.
नाउ यहाँ पे डेल्टा पी फाइंड आउट करना है, मोमेंटम का मतलब है, तो उसे सब्जेक्ट करो और रीअरेंज करो फॉर्मूला, यू विल गेट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। चलो वैल्यू रिप्लेस करो, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻12, राइट। Now if you simplify that, then you will get the delta P is equal to 2.638 into 10 to the power minus 23, राइट। और मोमेंटम क्या यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो अब उससे हमें किसके साथ कंपेयर करना है, तो एक्चुअल मोमेंटम भी हमें दी गई है। ओके, तो उसके साथ हमें उससे कंपेयर करना है। तो हमारी एक्चुअल मोमेंटम क्या हो जाएगी, एक्चुअल मोमेंटम ओके वो हो जाएगी, हमें दी गई है h बाई 4 पाई, राइट, इंटू 0.05 नैनोमीटर। ओके, चलो तो नैनोमीटर का भी हम उससे -9 लिख लेते हैं। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है, सही है, ये जो था वही मैंने लिखा है, सिर्फ नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। ओके, तो जो हमारी एक्चुअल मोमेंटम है उसकी यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करो और वो फाइंड आउट करो। सो यू कैन राइट दैट एक्चुअल मोमेंटम इज इक्वल टू एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, साथ में था डिवीजन में हमारा 4 इंटू पाई 3.14 और साथ में था 0.05 इंटू 10⁻⁻9। चलो अगर आप लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे देन यू विल गेट 1.055 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। इन दोनों को कंपेयर करना है तो हम कह सकते हैं इट कैन नॉट बी डिफाइंड एज द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ द momentum is smaller than the uncertainty in momentum, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 10⁻⁻24 है, 1.054, और जो अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू है, सही है, वो हमारी आई है 2.638 इंटू 10⁻⁻23। तो उसी वजह से इससे हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, ये वैल्यू ज़्यादा स्मॉलर है। ओके, तो यहाँ पे हमारे आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन, राइट। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।